everyone. So today we have a new problem which name is bird break. It's a medium level problem and I will say it's a good problem for understanding purpose. So let's read the problem statement. Given a string A and a dictionary of n words B, find out the A can be segmented into space separated sequence of dictionary words. Okay. So return 1 if it is possible to break A into sequence of dictionary words, else return 0. अच्छा ठीक है. So from the dictionary B, each word can be taken any number of times in any order. Okay, ठीक है. कि each word can be taken any number of times. This is the important line. Okay. So if n equals to 6, if my string B is like I, then like, then Sam, then sung, then Samsung, then mobile. Okay. So A is I like. Oh. So we have to find if A can be created by using the words of B. If it is possible, then we will return true, otherwise we will return false. If it is not possible, we will directly say it is false. We can't create like this string. Okay, so let's see. A can be created by using the strings of V. Like I like. So I is there and like is there. If we concatenated these two strings, then our string will be I like. So it is possible, so we will return true in this case. Let's see the another example. I like Samsung. Okay, so I like Samsung can be created like I here, like here, then Samsung. It can be created directly using Sam and Sung, and also it can be created like I, then this like, then Samsung. So it can be created, so it will return true. So as you can see, the string can be segmented as I like Samsung or I like Sam, then Sung. So it can be created. Okay. So the expected time complexity is big of n square. हम तो रिड्यूस करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो तगड़े बच्चे हैं ना इसलिए. तो एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन. ओके, सो देख लेते हैं एक बार कंपनी टैग भी देख लेते हैं. कंपनी को इसमें पूछा जो हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, हाइक, वॉलमार्ट, एमएक्यू सॉफ्टवेयर, गूगल, गूगल, आईबीएम. ओके, तगड़ी कंपनी में पूछ रखा है. मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका क्या है. ठीक है, देखते हैं. ए और बी ये मैंने आपको समझा दिया कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम. देखो, like if you have a string egg which is geeks for geeks, so geeks for geeks can be created by using the substrings. We can say strings of B, like geeks, then for geeks. So these, if we will use these three strings, then we can create a string A. Okay, so now let's see the approach part, like how we will create this. As you can see here, expected time complexity is big of n square, so big of n square में कर सकते हैं. ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हालांकि वो ब्रूट फोर्स बोलते हैं हम उसको, पर कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज, इफ आई एम एट द इंडेक्स 0, मैं स्ट्रिंग ए के इंडेक्स 0 पर हूं. नाउ आई विल टेक सब स्ट्रिंग्स फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स आई. इंडेक्स टू आई, इंडेक्स इज गोइंग फ्रॉम आई इज गोइंग फ्रॉम इंडेक्स प्लस 1 टू एन. एन इज मतलब नंबर ऑफ, मीन्स size of the string A. So I am at the index 0. Now I'll check कि यार if this character is present in this string, yes, I will go forward. Then I'll check, yeah, this is present, GE is present in this, नहीं. Then GEEK is present, yes. मीन्स चेक करेंगे, वो हमें पता नहीं है. देन गीक्स GEEKS को चेक करेंगे कि यार प्रेजेंट है भाई, यहाँ इसमें प्रेजेंट है भाई. हाँ, ये रिप्रेजेंट है. ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो गया. नाउ आगे चेक करेंगे, बट हमें रुकना पड़ेगा इसमें. हम तुम्हें देख रहे हो, दो लूप का यूज करना पड़ रहा है. इंडेक्स का यूज करना है. इंडेक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, इंडेक्स प्लस 1 से एन तक जा रहा है. बट ठीक है, वो दो लूप से तो हम कर देंगे. ठीक है, 0 से लेके एन तक, इंडेक्स इक्वल टू 0 से लेके एन तक, देन जे इक्वल टू आई प्लस 1 से लेके एन तक. देन हम सब स्ट्रिंग लेते जाएंगे और चेक करते जाएंगे ये बी में प्रेजेंट है या नहीं है. प्रेजेंट है तो फंक्शन कॉल मार के आगे के लिए भी चेक कर लेंगे. ठीक है, एंड तक. वो तो सबको पता है सॉल्यूशन. बट यार कुछ नया यहाँ पे आए हो तो कुछ नया भी तो देख के जाओगे ना. वो देखते हैं कि व्हाट वी कैन डू, मीन्स क्या हम नया कर सकते हैं. ठीक है, कि रिड्यूस इस टाइम जो लग रहा है ना, बिग ऑफ एन स्क्वायर तो लगेगा डेफिनेटली, बट जो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं. रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि वी विल क्रिएट अन ऑर्डर मैप. ओके, फॉर बी विल नॉट क्रिएट अन ऑर्डर मैप फॉर ए. फॉर बी के लिए क्रिएट करेंगे. ठीक है,
गीक्स के लिए क्रिएट करेंगे, फॉर सबके लिए क्रिएट करेंगे, बी स्ट्रिंग के लिए अनऑर्डर मैप क्रिएट करेंगे। देन वी विल चेक, वी विल ट्रेवर्स ए एंड वी विल चेक यार ये प्रेजेंट है या नहीं है, ये प्रेजेंट है या नहीं है। लाइक डू कोड करते हैं, ठीक है, कोड के साथ साथ अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूंगा फिर अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। So firstly, what I will do is I will create a unordered map, DERED map of किस किस टाइप का string कॉमा int टाइप का, ठीक है। मैप क्रिएट कर लिया। नाउ आई विल पुश द ऑल द strings of string b in map. So for int I equals to 0 to I less than b dot size, इसका कैपिटल b तो कैपिटल b ले लेते हैं, b dot size then I plus plus done. नाउ व्हाट आई विल डू इज, अरे यार बताओ टाइपिंग भी गलत कर देते हैं। मैप ऑफ बी ऑफ आई प्लस प्लस। नाउ आई हैव स्टोर्ड द frequencies of each string in map. Now what I will do is I'll check, I'll create a function in solve आपका, in function I will pass a, नो नीड टू पास बी बिकॉज बी, बी के लिए तो हम कर गए, चीजें कर दी है, मैप क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो मैप को पास कर देंगे इसमें, ठीक है। नाउ एक इंडेक्स पास करेंगे, फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। सो इन इसके लिए पास कर देंगे, इफ दिस इज पॉसिबल देन वी हैव टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी हैव टू रिटर्न फॉल्स, false. This thing all people can do, okay. Now the main part comes, okay. How we will create? Uh, we can use a data structure bool type of data structure. Now bool solve. In this, I'll pass a string a, comma map also I have to pass. Now we can pass map. So how we'll pass unordered map. So इसको by reference पास कर देते हैं, ठीक है। सो बाई रेफरेंस दे देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। नाउ आई पास द मैप ऑल्सो। नाउ व्हाट आई विल डू, आई हैव टू पास इंट इंडेक्स, ओके। नाउ बेस केस लिखना पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ रिकर्जन, रिकर्जन टाइप ऑफ थिंग। सो बेस केस तो आएगा ही, कहाँ पे रुकना है। अब एक चीज देखो, इफ माई इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए डॉट साइज, यार अगर ये चीज हो जाती है कि यार मैं है ना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जीरोथ इंडेक्स से और मैं एंड तक पहुंच गया हूँ, एंड तक पहुंच गया हूँ, ए वाली स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, एंड तक पहुंच गया हूँ, व्हाट इट मींस, अगर मैं एंड तक पहुंच गया हूँ इट मींस आई हैव ट्रेवर्स द ऑल द एरे एंड व्हाट आई व्हाट आई सी मीन्स क्या देखता हूँ मैं कि मेरे है ना सारी स्ट्रिंग बी में मिल चुकी है, मेरे सारे जो मेरे को जो नीड है, मेरे को जो चेक करना है स्ट्रिंग ए में, वो सब स्ट्रिंग बी में मिल चुका है, इसलिए तो मैं एंड तक पहुंचा हूँ। एंड तक पहुंचा हूँ इट मीन्स वी हैव टू रिटर्न ट्रू in this case because I am at the ending index. So in this I have to return true. Now what I will do, I'll apply a loop. Why I'll apply a loop? I'll apply a loop because I have to traverse the string A. So for int I to index to I less than a dot size. So a dot size then I plus plus. Now I'll create a string which we can say s equals to substring of sub str of index comma index, we can say टोटल साइज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल साइज नहीं आई, सो इट कैन बी क्रिएटेड लाइक आई माइनस इंडेक्स प्लस वन। नाउ इट्स परफेक्ट, ओके। व्हाई आई माइनस इंडेक्स प्लस वन, बिकॉज इट्स इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जाना है मेरे को, वैसे तो एंड तक जाना है, एंड तक जाना है, पर इफ माई आई इज लाइक, if we say I is like ending index, my I is फोर्थ इंडेक्स, सो 4 माइनस इनिशियल जो इंडेक्स था प्लस वन, वो कर दिया, ठीक है मैंने। नाउ इन दिस केस, सॉरी, ठीक है। नाउ मेरे पास सब स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने बोला था ना कि ई के सब स्ट्रिंग को हम चेक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको देखो कर्सर को, ठीक है, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एक एक स्ट्रिंग को चेक करते जाऊंगा कि बी में प्रेजेंट है या नहीं। हाउ के बी विल चेक, इफ मैप डॉट फाइंड ऑफ एस नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, व्हाट इट मीन्स, इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, इट मीन्स
कि वो चीज हमें मिल चुकी है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई, आई विल चेक इफ सॉल्व ऑफ ए कॉमा मैप कॉमा आई, इंडेक्स का क्या हो जाएगा i+1, ठीक है। एंड इन दिस केस व्हाट आई हैव टू डू, रिटर्न ट्रू, ठीक है। एंड अदरवाइज कि यार मुझे तो नहीं मिला, ठीक है, अदरवाइज अब मैं लूप से बाहर आ गया, रिटर्न फॉल्स कर दो, सिंपल, ठीक है। इफ मैंने अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, अगर मैं अंदर रिटर्न कर देता यहीं पे रिटर्न हो जाता, क्योंकि हम फंक्शन कॉल मार रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ, प्लीज रिटर्न फॉल्स। लेट्स कंपाइल दिस एंड सी इफ दिस विल वर्क और नॉट। It is giving me some type of compilation error. Index, it's a index comma I minus index. So what is the problem in this? Index comma index I minus index plus 1. So is not substr of, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओ द प्रॉब्लम इज ए। अरे सब एस टी आर तो लिख दिया, कौन सी स्ट्रिंग का ये भी तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है। और प्रॉब्लम कहाँ पे आई है? लाइन नंबर 39, 39 कहाँ पे है? 39 ये है, इस पे मैं यहाँ लगाना भूल गया हूँ सेमी कॉलन, क्या कहते हैं इसको, सेमी कॉलन बोलते हैं ना, हाँ, ठीक है। अब तो वर्क कर जाएगा यार, कर जाए यार, क्या दिक्कत आ गई? टाइम बहुत ले रहा है, क्यों टाइम ले रहा है? जल्दी क्यों नहीं चल रहा है ये? बताओ। हाँ, परफेक्ट वर्क कर गया, एकदम डरा देता है इतना टाइम लेता है, तो सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, बढ़िया कर गया काम, ठीक है। इस तरीके से हम कर देते हैं, ठीक है। So this was the complete solution. If you find this helpful, then please like, share and subscribe यार। For more the problems like इसी तरीके से प्रॉब्लम आगे भी चाहते रहते हो तो लाइक कर लेना यार, क्या जाता है लाइक करने में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। भाई का चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इससे भी तगड़ा प्रॉब्लम लाएंगे, ठीक है।